Bismillahirrahmanirrahim. I am your Ghulam Murtaza, the host of today's session. Dear viewers, my respected viewers, first of all, I would extend my sincere thanks to the one and only young and energetic personality, the CEO of IBA Academy Nusherfroz, who approached me, who has invited me to become the part of this session. I am highly privileged to join this session, and once again I give congratulations to the Mr. Amjad Ali Mir Saab, who has done such a great job. And at the same time, I give congratulations to his team that in this crucial event and condition where the whole world is under lockdown, and in this situation at the same time you have done this meaningful and effective conference. That's why you really deserve the appreciations. So dear youngsters, you have done a great job, and may Allah bless you. Dear respected viewers, as far as my topic is concerned today, many speakers came and they have talked their relevancy topic, their professional relevance topic. Now I have selected, and I realized myself what topic should I select. Then I feel an honor and to select this topic, that why should I not conduct the session about the guidance of the students. That's why I have selected the topic that what is career, or role of career counseling to uplift the career of the youngsters. So first of all, I would feel an honor to share my outline that my topic is concerned with the career counseling. I will guide you, I will suggest you to all the youngsters to how to build the career. And what is the area of speaking is, my area of speaking is that first of all I will discuss about what is career. Then I will talk about what is the difference between career and career counseling, how career counseling is going to support the students for career, and what are the careers in the world, and how to choose a best career in the world, what are the careers. And then I will talk about who are the builders of your careers. I mean to say, what are the supporters for your career that who can uplift you, will guide you, will pick you and will push you to get the career of your life. Then I will talk about the successful story of the peoples who are the failure, and then they become successful peoples in their life. After that, the major and key touchstone of my session is that is the decisions making process in career counseling. The decisions making process matters a lot for the parents and for the students, and at the same time for the teachers. So this would be my discussion during the session. So first of all, I would talk about what is career. Dear students, career is basically is your destiny, is your target, is your future that you may design in your life. Career is a stage of honor. Career is a stage where you own respect and you serve the society and serve the world and lead the state. Career is basically is your identification, is your recognition. This is a take and honor that you are taking the education, you are making plan, you are designing, planning for your career. So career is most important, and it is very difficult to take the decisions regarding the career. So first of all, as I say, career is a target. Career is your future. Career is your destiny. There are so many careers. Some people want to become a doctor, some want to become an engineer, some want to be the professor, and some want to become an actor, some wanted to become a singer, someone wanted to become a designer. So there are so many careers in the world,
and it's very difficult to select one of them. But there are some reasons, there are some valuable reasons by which you can understand and you can design your career properly. As I say, where from your career start? This is the first outline to be discussed. Your career starts when you are born, when you exist in the world, and in which family you exist in the world. This is a question, and it is a matter of fact that in where and in which family you are going to be born. So, dear viewers, your career starts when you are going to born. And now, when you are born, then Allah says that you are being created in the world to play your role. And if the person or student, if they have understand their existence, that I am being born here to play my role and to play my actual role. Now here we have to understand how can we understand that this is my career, this is my role, this is my future, this is my role that I can play. It's very easy. How it's very easy? You may try to ask from your inner capability, from your inner soul, what type of skill you have and what is the main quality you possess that Allah has given you. If you have understand this situation and phenomena in your inner capability, then I am assuring you, you will choose your best career in your life. Dear viewers, as I say, it's one of the best thought that you can understand in your life, that there are your career, as I say, who are you are mostly who supports your career. As I told you, the parents, where you born. First of all, there are the three personalities in your life. They may support you, they may encourage you, they may push you to get the career ahead. Number first is in which family you are born. Like if you are born in a poor family, then you will possess many challenges. But if you will born in middle class, then somehow to some extent you will face the challenges. If you are going to born in elite family, then there would be some different what we call it the atmosphere of challenges. Now, in my question, I have a question from all of you, all the viewers. What do you think that life is tough or easy? What do you understand? How do you see that life? According to my knowledge and assessment, life is tough. Life is the name of survival. In a life, there is not a single way, I am telling you. There is a zigzag way. There are the different challenges you will face that. Life is the name of a struggle. Life is the name of contribution. Life is the name of contribution, but I can say continuously contribution, your role. So life is tough and it's very difficult to face the life, but at the same time life is easy when you will understand your skills and power and your skills and capability. Then I'm telling you, you will make life very easily. Now, as I say, in life you will face couple of challenges. As I told you, when a person is going to born, he is going to face the challenges of his family in which he is going to born. And then when he grow up, he is going to face the challenge of education. When he is going to complete the career of education, then he will go after inter or first year, he will go for the university. He will face a challenge in the universities, different challenges he will face. After that, when he will go for the job, a professional job, then he will face different challenges there at the same time. So there are the different challenges and life is not easy. As I say, who are the supporters in your life? Who will support your career to get easy, your destiny in future?
with you to get your career. First of all, the first personality that will support you to get a career and target, that is the parents. Alhamdulillah, if you are intellectual, then you can understand the respect, honor of the parents, what is the role of parents for you people, for your support and for your career. Now, what is the duty of the parents for you people, for your career? Parents' duty is to support you in a good, they will support you and send you in a good school, give you a good schooling, and their duty, and they are bound to give you a good couple of exercises and give you good food, good dresses, and teach you good manners and characters, and after all, Islamic education properly. These are the basic needs and basic things that the parents, they are responsible for that. At the same time, the students are, if they are willing for the career, a brighter career, then their duty is to respect the parents. If they will respect the parents, I'm ensuring you, giving you promise and guarantee, then you will get career easily. So the teachers, at the same time, after the parents' responsibility, the second personality, those who will support you to your career, that is a teacher. No doubt, teacher is your second parents. They can understand your talent, they can understand your psyche, they can understand your mental approach, because they taught you, and they can understand your caliber, they can understand your approach, they can understand your psyche, what type of career you have in your heart and soul. So teacher is who take your reins of your future and teach you the right direction, that where is your career, where is your right direction, where is your future. Teacher can lead you properly. There is a quotation that a teacher is a personality who really understands your behavior, your mental approach, I said, your talent, your confidence, and he can understand that why are you born here, what kind of role you can play in the world. So teacher is the second pillar, I say, who will support you. The third personalities, they will support you in your career. They are the environment, your societies. In society, you will meet with a couple of peoples, like your inspirable personalities, motivational personalities, your ideal personalities. You will learn from them, you will understand from them. And number second, sometimes you are going to learn from your enemies. Enemies, why I have quoted this word enemy, that you will learn. Enemies sometimes become idle, sometimes become up to the mark on the dignitary chairs. That's why you are going to copy them, and they become for a challenge for you, and you are going to work hard, and you are taking the preparation to get that target. So in society you will meet with the different challenges, and if you have to get a career and learn from society, then you kindly, I'm telling you all, sit with ideal peoples, sit with in a good environment, sit where you get inspiration. Inspiration for what? I'm talking about inspiration for your career, inspiration about your target, inspiration about if you want to be the CSS officer, then you must have a sitting with the experienced peoples of CSS. Now if you want to become a lawyer, then you must have to get inspiration from the lawyers and advocates and barristers. So sitting with ideal peoples, sitting with in a good environment, this also reflects you and will support you to get a brighter career in your life. So there are the three things, as I told you, they support you in your career. These personalities will support your careers. Number one, as I told you, that parents are you responsible for your career. Number second, your teacher, and number third, that is the society where you learn from them. In successful, there is a book written by John Maxwell, How a Successful People Thinks. He said that the successful people thinks
in a one parameters. He said that a success, as far as success is concerned, their success is not concerned with you can measure the people, or you can measure the success on the personalities, that a person cannot be measured in inches, in pounds, in poverty, in background, or in races, or in colleges. But your success, and a person's success, can be measured by his size of thinking, how much he thinks. If he is thinking broader, if he is highly conscious about this feature, then I'm telling you that person will go for the success easily. So it doesn't matter if you are from the college side, government college side, and some people they are from the private side, and some people they are belonging from the poor families, and some other they are belonging from the rich elite families, then they can only they have right to get a career. No, everybody have right. Rich and poor both have right, and career is just only not for the rich, but at the same time a poor student can get the career easily. Why? As I told you, that success is a matter of thinking, how much you think. If you think positively, continuously, consciously, inspirably, then you will get the career at the same time. My dear students, as Allah says as in Quran, this is what happens in that, never lose your hopes or never said, कभी भी अपनी आप को कम ना समझे. मेरा ये कहने का मकसद है यहाँ पे आप लोगों को कि अपनी क्वेश्चंस खुद ना बनाएं कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई राइट नहीं है आगे बढ़ने का. बेटा देखें, सबको राइट है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि कभी भी मायूसी ना करें, और ये भी कहता है कि डोंट लॉस होप्स, उम्मीद रखें. एज इकबाल से अपनी आप दुनिया पैदा कर अगर जुंतों में है. If you are living in the world, if you are exist in the world, then try to make your career. Prove yourself that you are here to play the role. Prove yourself that you have a talent. Prove yourself that you are the revolutionary people and you have potential to get your career. फिर से इकबाल कहता है अपने आप को समझने के लिए, कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. नाउ इट्स क्लियर, Allah is going to ask from a person that please try to work hard. If you will take one step, I will support you. So at here, there is not the cause of the poverty or the rich families. Everybody have right to get a career. Everybody have right to become a commissioner, CSSP officer, lawyer, and can be. There are a couple of examples that the poor peoples and the failure peoples, they came, they worked hard, they started their journey, and they are now on the dignitary chairs. Dear students and my viewers, one thing more importantly I would like to say here, as I say, the key, speaking of my touchstone of my lecture and session is that is a decisions making process of a career and children's. That is started, decisions making career process started when you are going to enter in the first year class. When you are going to pass metric class, then you are going to select the career and the profession. That is, you are going to select the field. What type of field? Some students they wanted to go for medical side, some students they are willing for the engineering side, and some other they wanted to go for the lawyer judiciary process or somewhere else, and arts designs. Now here what happens, यहाँ पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडर होता है बच्चों के लिए कैरियर सिलेक्शन के लिए. पेरेंट्स कहते हैं कि मैट्रिक के बाद मेरा बच्चा जो हो या बच्ची जो हो वो डॉक्टर हो. फादर कहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो, मदर कहती है कि वो मेरी जो बेटी हो वो इंजीनियरिंग पढ़े, और ब्रदर कहता है कि नहीं ये कोई CSSP करे, CSS करे या लॉयर बने. अब यहाँ पे कंट्रोवर्शियल यानी कि अप्रोचेस आ जाती है बच्चों के लिए, वो पजल हो जाते हैं. मैं उन पेरेंट्स से पूछता हूँ
कि मेरी एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द टैलेंट ऑफ चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रंस, कि उनके पास क्या पोटेंशियल है, क्या उनके पास साइकी क्या है, कहाँ पे जाना पसंद करते हैं। पढ़ते स्टूडेंट्स हैं और सिलेक्ट आप करते हैं। अगर एक बच्चे के पास टैलेंट है मेडिकल साइड का, आप उसको इंजीनियरिंग के पास भेज देते हैं तो ज़ाहिर बात है फेल हो जाएगा। और अगर किसी के पास इंजीनियरिंग का पोटेंशियल थे आप तो उसको यानी कि इंग्लिश में भेज देते हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते हैं। तो मेरे कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो कहाँ पे जाना पसंद करते हैं। अगर उनसे तो पूछें कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनकी क्या विशेज़ हैं, उनकी क्या डिमांड्स है, उनकी क्या फील्ड है, उनके पास कौन सा टैलेंट है, वो कहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक डिसीजन ये होता है, अगर कलेक्टिव डिसीजंस लेंगे, अपने उसके टीचर से भी पूछें, आप भी समझे अगर आप एजुकेटेड हैं। ये मसला वहाँ पे होता है, कीप इन योर माइंड में ये बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि ये कलेक्टिव डिसीजंस और रॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ये इसलिए होती है यहाँ पे मैट्रिक के बाद, कि जो एजुकेटेड हैं, वेल ओरिएंटेड फैमिलीज़ हैं, उनको तो पता है उनके डिसीजंस और प्लानिंग करने का एजुकेशन करियर को अपलिफ्ट करने के लिए। मगर जो एजुकेटेड नहीं हैं और उनको पता नहीं होता है कि हाउ टू मेक स्ट्रेटजी फॉर द चिल्ड्रंस कैरियर, तो वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर रिलाई करते हैं। तो वो उनकी जो ना क्या कहते हैं कि रॉन्ग हो जाती है, वो फेलियर हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उससे तो पूछे कम से कम कि उसका इंटरेस्ट क्या है, व्हाट यू वांट टू बी और व्हाट शी वांट टू बी। अगर आप उनसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल में ये एक मैच्योर और अच्छा डिसीजन रहेगा आपके करियर के लिए, आपके बच्चों के करियर के लिए, और वो जो बंदे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। उसके बाद एक और मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि करियर बनते कैसे हैं और फेल कैसे होते हैं, ड्रॉप कैसे होते हैं। जो डॉक्टर बन जाते हैं मैट्रिक में के बाद, जब वो फर्स्ट इंटर में पढ़ते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं और सिलेक्शन उनकी हो जाती है, और फिर वो जब जिनकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो माशाल्लाह अपने आप को डॉक्टर समझते हैं और वो कहते हैं कि हमने कैरियर हासिल कर लिया है। मैं उनके लिए गुजारिश करता हूँ, उनके लिए सजेशन है मेरी कि बेटा दैट इज़ द फर्स्ट आई कैन इंक्राउन इन योर शोल्डर्स। ये गोल है, ये आपकी फर्स्ट अचीवमेंट है। इसको आप लाइफ ना समझें। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में देखे हैं स्टूडेंट जो डॉक्टर बन जाते हैं तो उनकी कॉलर्स जो है वो ऊपर बन जाती है, बढ़ जाती है, वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रह जाते हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, उनके लिए वो क्या करते हैं मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि वो क्या करते हैं। जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, जो पेरेंट्स उसको भेज देते हैं कि भाई नहीं आपके पास यही चॉइस है, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि कौन सी चॉइसेस हैं, और भी चॉइसेस हैं, कैरियर्स हैं दुनिया के अंदर। तो जो नहीं बनते वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ते अप्लाई करने में। दे आर गोइंग टू अप्लाई इन एवरी यूनिवर्सिटी। जब वो अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में वो सिलेक्ट हो जाते हैं, सेंट यूनिवर्सिटी में या एल्सवेयर, तो वो फिर क्या कहते हैं कि यार हमारा यही नसीब था। देखें बेटा, नसीब इज़ अनदर थिंग, हार्ड वर्किंग इज़ अनदर थिंग, लक फैक्टर इज़ अनदर थिंग। आप अपने आप से पूछें, अपनी कैपेबिलिटी से पूछें कि भाई आपने मेहनत कितनी की, आपने क्या किया जिसकी वजह से आप इधर आ गए। ये हमारी थोड़ी सी मैच्योरिटी होती है अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेते हैं। और हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आई बीइंग ए टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, आई विल गाइड द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के कैरियर। जब यूनिवर्सिटी में बच्चे आ जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़ीरो में से हीरो बनते हैं और हीरो में से ज़ीरो बन जाते हैं। जो हीरो में से ज़ीरो बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि जो वो मेहनत नहीं करते, तसलसल नहीं करते, अपने आप को वो सब कुछ समझते हैं। और जो ज़ीरो से हीरो बनता है वो स्पेशली गरीब ख़ानदान के बच्चे होते हैं, जिनको पता है कि हमें फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, यही अपॉर्चुनिटी मिली है और हमें ही कुछ बनना है, हमें ये यहाँ से बनना है, यहाँ से फ्लाई करना है। तो वो तसलसल से अपनी मेहनत करते हैं, तो वो ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं और यूनिवर्सिटी उनको एक प्रोफेशनल एक
अच्छा ब्रांड बना देती है, एक अच्छे स्टूडेंट बना देते हैं। फिर वो जब अपनी करियर में जाते हैं, प्रोफेशनल करियर में जाते हैं, तो फिर वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे इंसान भी बन जाते हैं। अब ये है कि हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट करियर, कैसे पता चले कि ये मेरा करियर है। एग्जैक्टली इसका यही आंसर है, यही समझना चाहिए हमें कि सबसे पहले अपना फार्मूला बना लें कॉस्ट एंड बेनिफिट का, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लिखें। अगर आपने डिज़ाइन किया है कि स्ट्रेंथ में आपको ये लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखें और फिर आप लिखें कि मेरी वीक जोन कहाँ पे है, वीक एरियाज़ मेरे कौन से हैं। अगर आपके वीक जोन्स बढ़ जाते हैं जिसमें, तो आप ये समझें कि वो आपका करियर नहीं है। और जहाँ पे आप समझते हैं कि मेरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, 100% आपका यही करियर, तो आप वो करियर चूज़ करें। अब ये भी है, जैसे कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, रिनाउंड स्कॉलर्स कहते हैं कि कैसे पता चले कि ये आपका करियर है। उसका एक ही रीज़न है, जो करियर आपको थकाता नहीं है, जो करियर आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, वो आपका करियर है। जिस पे आपको यानी कि आप करियर आपको इंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्टिंग हो, आपको पता है कि ये इसमें मेरी दिलचस्पी है, तो ये कीप इन योर माइंड, आई एम टेलिंग यू दैट इज़ योर करियर। मतलब अपने आप को खुद पहचानो, सेल्फ रियलाइज़ करो, डिस्कवर योर सेल्फ कि मैं किस चीज़ में थकता नहीं हूँ, किस चीज़ में मेरी दिलचस्पी है, किस चीज़ में नहीं है। अगर आप देखते हैं, मैं आपको बताऊं, क्रिकेट का एग्जाम्पल है। धूप में बच्चे गेम खेलते इसलिए हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये मेरा करियर है, उनकी दिलचस्पी है, वो उनका एक इंटरेस्टिंग जोन है जिसके लिए वो वहाँ पे खेलते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर भी वो सिंगिंग करते हैं, रूम के अंदर उसके पेरेंट्स उनको मना करते हैं, भाई आप बिहेवियर लिखें, आप करेक्टर्स यानी कि आपके मैनर्स में रहें, मगर फिर भी वो सिंगिंग करते हैं। अब जब वो सिंगिंग करते हैं तो आप लोग ये समझ लें कि शायद वो ही उसका फ्यूचर है। इसके लिए उसका जो अंदर से आवाज़ आ रहा है वो बैठना नहीं देता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक इन पाकिस्तान, आतिफ अली, उसको पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया कि आप डॉक्टर बनो और ये करो ये करो ये बनो, मगर वो जब स्कूल कॉलेज जाता था तो वो अपनी कैंटीन के बैठकर वो सिंगिंग करता था। आज आप देखें आतिफ असलम, नाउ ही इज़ अ सिंगर। तो मकसद ये है मेरे कहने का कि काइंडली जो आप अपने आप को समझें, अपने इनर कैपेबिलिटी से समझें कि आपके पास कौन सा टैलेंट है, क्या बनना चाहते हैं आप, और आपके अल्लाह ने आपको कौन सी सलाहियत दी है जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ना है। ये आप खुद फैसला करें। आप रात को बैठें, रात को सोने से पहले आप ये रियलाइज़ करें, रियलाइजेशन फार्मूला अप्लाई करें कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह ने मुझे वो कौन सा आवाज़ दिया है, कौन सा वो मुझे करैक्टर दिया है जिसकी वजह से मैं दुनिया पे राज करूं, जिस वजह से मैं अपनी चेयर पे लूँ, मैं करियर लूँ, अपनी इज़्ज़त बनाऊँ, कमाऊँ, अपने पेरेंट्स का ऑनर यानी क्रेडिबिलिटी को आगे लेके चलूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करें। जब अपने आप को डिस्कवर करेंगे तो आपके लिए डिसीजन आसान हो जाएगा, आपके पेरेंट्स के लिए भी आसान हो जाएगा, आपके टीचर्स के लिए भी आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको कैसे पता चले कि ये आपका करियर है। देखें, मैंने आपको बताया कि करियर काउंसलिंग सपोर्ट योर करियर। काउंसलिंग क्या होती है बेटा? काउंसलिंग ये होती है कि जिस चीज़ को आपको पता नहीं है और you are going to ask questions and suggestions from your teachers and seniors and respected renowned scholars and dignitaries peoples, और वो आपको जब वो गाइड करते हैं तो वो आपकी काउंसलिंग बन जाती है। जिस चीज़ का आपको इल्म ना हो, जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि अंदर में कौन सा टैलेंट है, वेराइटी है, उनको और उसको सीनियर्स बताते हैं, उनको उसके टीचर्स बताते हैं। तो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ व्हाट, आपको अपने आप को समझें, डिस्कवर करें कि आपके पास अल्लाह ने कौन सा वो रासिम दिया, कौन सा वो एलिमेंट दिया जिसकी वजह से आप आगे निकल सकते हैं। और वो कौन सा यानी कि एलिमेंट है वो मैंने आपको बताया। आपके पास कभी कभी आपके स्पीकिंग स्टाइल होता है, आपके पास अल्लाह कभी कभी आवाज़ देता है, कभी कभी आप आर्ट देता है। एक स्कॉलर कहता है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यूसुफ नानी कहता है, यूसुफ नानी कहता है कि फ़न को हासिल करने के लिए आपको फ़न हासिल करना चाहिए, यानी आर्ट नीड्स एन आर्ट। फ़न को हासिल करने के लिए भी फ़न की ज़रूरत होती है। तो
अगर आपको आगे बढ़ना है, करियर तक बढ़ना है, तो आप अपने आप को समझें कि आपके पास अल्लाह ने कौन सी वो क्वालिटी दी है। बाकी ये है, मैं आप पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर कैरियर्स नहीं हैं, देयर आर सो मेनी कैरियर्स। आप देखें अपने जो आजकल के इरा में जो चल रही हैं कैरियर्स, उनको भी देखें आप। जैसे डॉक्टर इंजीनियर के अलावा मैं आपको बताता हूँ कैरियर्स कौन से हैं। बेटा देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास CSS करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ज़ाहिर बात है, आपके पास एक बड़ा कैरियर है SP बनने के लिए, कमिश्नर बनने के लिए। आप पहले डिग्री करें, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते कोई इशू नहीं है, आप सेकंड B प्लान बनाएं। B प्लान ये होता है कि आपके पास एक और राइट डायरेक्शन होना चाहिए। वो ये है कि आप MSc करें, MSc के दौरान बाद में आप प्रिपरेशन करें CSS की। CSS जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके इंशाल्लाह ताला आपकी अप्रोच बढ़ेगी, ब्रॉडर होगी, थॉट बढ़ेगा और आप आसानी से आगे निकल सकते हैं, कमीशन कर सकते हैं। उसके बाद और फोर्सेस के करिए, आप कैप्टन बन सकते हैं आर्मीज़ में, नेवीज़ में, एयरफोर्स में, आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। वो भी आपका कैरियर है। आप अपने आप को डिस्कवर करें कि क्या आप डॉक्टर के लिए यहाँ पे हैं, आए हैं, एग्जिस्ट किया अपनी दुनिया में, या आपने आपको कैप्टन बनना है फोर्सेस के में, या आपको नेवी में बनना है, या आपको कोई सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बनना है। तो डियर व्यूअर्स, इट्स अप टू यू। अंडरस्टैंड योर टैलेंट, अंडरस्टैंड योर होल सोल के व्हाट इज़ योर टैलेंट इन यू, अल्लाह हैज़ गिवन यू। ये समझना है आपको। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर इंटर में था, मैंने ट्राई की, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। जब मैं डॉक्टर नहीं बना तो फिर मैं मायूस हो गया। फिर किसी टीचर ने मुझे गाइड किया, फिर मैंने भी समझा कि शायद मैं डॉक्टर इंजीनियर मेरे लिए सही नहीं है, अल्लाह ने मुझे कोई किसी और चीज़ के लिए बनाया है। तो फिर मैं इस्लामाबाद कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ पे मेरी एडमिशन होगी IR में। IR का मुझे पहले कोई पता नहीं था। व्हेन आई वाज सिलेक्टेड इन टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एलिट फैमिलीज़ के बच्चे, जो कमिश्नर्स के बेटे, ऑफिसर्स के बच्चे वहाँ पे IR में पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये सिलेक्ट क्यों की हो? तो उन्होंने बताया कि हमें पेरेंट्स गाइड करते हैं, हमें टीचर्स गाइड करते हैं कि आपको CSS पे ऑफिसर बनना है, और CSS ऑफिसर बनने के लिए आपको IR की ज़रूरत पड़ती है, या सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, या ये आपको मैंने एक पहलू बताया। उसके अलावा और कैरियर्स हैं, MBA है। आप जब MBA कर जाते हैं तो आप प्रोफेशनल बैंकिंग सेक्टर्स में जाते हैं, कॉरपोरेशंस में जाते हैं, इकोनॉमिक की फील्ड है। सो देर आर सो मेनी फील्ड्स। और आप ये अपने आप क्वेश्चन पुट अप ना करें, बदगुमानी ना करें, क्वेश्चंस ना करें कि भाई ये मैं ना नहीं बन सकता। अपने आप क्वेश्चंस नहीं बनाएं। देखें, आप ये ना सोचें कि ये मैं नहीं कर सकता और ये फील्ड मेरे लिए सही नहीं है। स्कोप फील्ड का नहीं होता बेटा, स्कोप होता है आपका, अपने आप, यानी कि आपके टैलेंट का। स्कोप आपका होता है, आपकी पर्सनालिटी का होता है, आपके विजन का होता है, आपकी नॉलेज का होता है, आपके टैलेंट का होता है, आपकी कॉन्फिडेंस का होता है, आपके यानी कि जो सेल्फ रियलाइज़ करके आप चीज़ बनाते हैं कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, उसका एक स्कोप होता है। उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपको 2020 के बाद बहुत से करियर आएंगे आपके पास, और आप स्पेशली दे विल फेस ट्रबल, डिफ़िकल्टीज, स्टूडेंट्स विल फेस मैनी चैलेंजेस, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की दौर आएगी, दुनिया आएगी, टेक्नोलॉजी का दौर आएगा, दुनिया कंप्यूटर पे काम करेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। जिसके पास जितने स्किल्स होंगे वही उतना आगे बढ़ सकता है, वही आगे करियर आसान से ले सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक फार्मूला है कि आजकल की दुनिया में बंदों ने तो कैरियर्स 3 बना लिए हैं, वो उस पर दुनिया चलती है। डिमांड्स, नीड्स एंड विशेस। कह रहे हैं कि मेरी डिमांड ये है, विशेस ये है, और ख्वाहिश ये है, और नीड्स ये है। आपको बताऊं कि कैरियर बनाने के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है आपके टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने उन दोस्तों का, उन उस्तादों का जो दे आर एक्सपीरियंस्ड। उनसे आप मिलें, उनसे आप काउंसलिंग लें कि आप
के अंदर कौन सा टैलेंट है। अगर आप खुद नहीं पहचान सकते तो आप उनसे लें, उनसे मशवरा लें कि आपको क्या बनना है आगे, और आपके लिए अल्लाह ने कौन सा टैलेंट ऐसा रखा है आपके अंदर जिसकी वजह से आप आगे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक शायर है जो कहता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम फेल हो गए, हम अब क्या करें। मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर अंडर द ग्लोबलाइजेशन के अंदर देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिन्होंने जो फेल हुए हैं और फिर दुनिया पे उन्होंने राज किया और रिचेस्ट पीपल्स हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा है जो पहले फेल हुआ कि यानी कि अली बाबा का जो माल के यानी कि ओनर है, वो काफ़ी मरतबा वो उन्होंने ट्राई की, वो फेल हो गया। तो आप देखें अली बाबा कहाँ पे है, वो कहाँ पे आगे यानी कि उसकी स्टेज क्या है, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा बिल गेट्स है, उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इब्नार महल है, वो क्या कहते हैं मज़ारी, शी इज़ डूइंग अप टू द मार्क। उसने अपनी कमज़ोरी, जो हम कहते हैं हाँ भाई हम इग्नोर महल है, हमारे पास हाथ नहीं, हमारे पास लेग्स नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताऊं कि आप जाके समझें, जो नेवर क्या जो स्कॉलर है हमारे पास, जो मोटिवेशनल स्पीकर है जिसके पास टांग नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर उसके साथ कौन सी हालत हुई, वो उसको अपने हस्बैंड ने छोड़ दिया, फिर उसको डॉक्टर ने कहा कि आप यानी कि बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो उसने अडॉप्ट किया और अपनी लाइफ को एक चैलेंज के यानी कि फेस किया उसको। तो माय डियरेस्ट व्यूअर्स, ये समझना है कि एबनॉर्मलिटी वो होती है, एबनॉर्मलिटी थिंकिंग क्यों होती है बेटा, शऊर क्यों होती है। जिसके पास हाथ नहीं है, पैर पाँव नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मगर जिसके पास विजन है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास आर्ट है, वो कभी पीछे नहीं रहता, वो आगे जाता है, वो आगे साइंटिस्ट बनता है, वो LLB करता है, इकोनॉमिस्ट भी बनता है, सोशल साइंटिस्ट भी बनता है, बिजनेसमैन बनता है, पॉलिटिशियंस भी बन सकता है, क्योंकि वो अपने आप को समझता है। एक शायर का कौल है जो कहते हैं कि भाई हम फेल होते हैं तो मायूस हो जाते हैं। मैं उनके लिए कहता हूँ कि इकबाल अच्छे तरीके से समझाता है, वो बताता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। फिर से एक शायर कहता है, वो कहता है कि मंजिल के जस्तजू में राही, एक शायर है, वो कहता है कि मंजिल के जस्तजू में क्यों खो गए हो राही, इतना अजीम हो जा के मंजिल तुझे पुकारे। यानी परेशान ना हो, अपने आप को इतना संवारो, टैलेंट के हवाले से, अपने आर्ट के ज़रिए इतना अजीम बनाओ कि कामयाबी आपका वेट करे, कामयाबी आपकी कदम चूमे। तो मेरा कहने का मकसद बेटा यही है कि अपने आप को समझो, अपने आप को आगे लेके जाएं। उसके बाद एक शेर है जो शायर समझाता है हमें कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतने खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में बैठकर परेशान हो जाते हैं कि यार हम नहीं बन सकते, हमारे कज़न्स बन गए, ये करके वो फलाना मुझे ये कह रहा है, वो कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बन सकते। तो मैं उनके लिए सजेशन में उनको गाइड करता हूँ कि काइंडली आप अपने आप को मायूस ना करें, मायूसी कुफ्र है। आप ये समझें कि एक मंजिल से एक और मंजिल है, और जब आप अपने आप को खामोशी से मेहनत करेंगे तो आई एम टेलिंग यू, वो आपकी जो खामोशी है वो कामयाबी इतना शोर मचाएगी कि आपको वो दुश्मन देखेंगे, आपके रिलेटिव्स देखेंगे कि आपके पास क्या है और आप क्या थे और क्या है बने हो आप। मगर बात है स्ट्रगल करने की, बात है आगे निकलने के लिए, बात है मंजिल को पुकारने की, बात होती है मंजिल को, ड्रीम को देखने की। जैसे एक शायर इकबाल कहता है कि मंजिल तो मिलेगी भटकर ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से नहीं निकलते। बेटा घर में कोई मंजिल नहीं मिलती, जब एक स्टेप आगे लेंगे तो आप जारी बातें आके जाएंगे। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया के अंदर अब ये क्या हो रहा है कि दुनिया इस चीज़ पे काम कर रही है, प्लानिंग के ऊपर, कि आप कम से कम अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करें कि आपने उसको में क्या टैलेंट देखा है,
क्या बनना चाहता है बच्चा, उसके लिए प्लानिंग करें। बाहर के मुल्कों में क्या होता है, आप देखें, जिस बच्चे के पास साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं वहाँ पे बच्चे की मेंटल अप्रोच देखते हैं, उसको एक्टिविटी देते हैं। जो इस एक्टिविटी में स्टूडेंट वो दिलचस्पी रखता है तो वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसका कैरियर यही है, ये इंजीनियर बनेगा, ये सिंगर बनेगा, ये प्रोफेशनल लॉयर बनेगा। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ होती है इस चीज़ को आगे निकलने के लिए, उसको समझाने के लिए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि दुनिया में कैरियर को हासिल करने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है, आपको आगे स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ती है। मौला अली का फरमान है कि आपकी स्ट्रगल ये नहीं है कि आप थक जाते हैं, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर कर के जब थक जाते हैं तो आप कहते हैं कि वही स्ट्रगल है। नहीं, मौला अली फरमान कहता है, मौला अली का फरमान है कि आपकी रियल स्ट्रगल वो है जब आप थक जाएं और फिर आप स्टेप लें, वही आपका कैरियर है, वही आपकी स्ट्रगल है। तो मैं आपको और बता दूं कि आजकल के करंट सिनारियो में लॉ का एक बड़ा रोल है। जुडिशरी इज़ वेरी स्ट्रांग, वन ऑफ द ब्रिलियंट कैरियर आई एम टेलिंग यू। उसके लिए भी आप करें, जो डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, लॉ की फील्ड है, आप उसको टेक ऑफ करें। उसमें सेफ्टी है, उसमें आपका कैरियर है, वो एक ऑनरेबल यानी कि वो एक सिंसियर प्रोफेशनल कैरियर है आपका, उसको आप आगे ले सकते हैं। तो जो बंदा, अब बात होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्किंग भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, कैरियर के लिए हार्ड वर्किंग इज़ मोस्ट एसेंशियल, मगर हार्ड वर्किंग करने के भी तरीके होते हैं। जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग करते हैं राइट डायरेक्शंस में, वो कैरियर आसानी से लेते हैं। जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं रॉन्ग डायरेक्शन से, उनको पता नहीं होता है कि मेरा डायरेक्शंस कहाँ हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मेरा डायरेक्शन कहाँ पे। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे नॉन सीरियस होते हैं, मगर वो स्मार्ट वर्क करते हैं। क्यों स्मार्ट वर्क करते हैं वो और कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये राइट डायरेक्शंस में वो काम कर रहे हैं और स्मार्ट वर्क से वो आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो सारा दिन रात काम करते हैं फिर भी सक्सेस नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं बेटा, क्योंकि वो राइट डायरेक्शंस में नहीं करते स्टडी। तो कैरियर को हासिल करने के लिए आप कम से कम राइट डायरेक्शंस में स्टडी करनी चाहिए। और इसके अलावा क्राउड फॉलोवर्स नहीं बने आप लोग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, भाई फ़लाने ने इंजीनियरिंग की, फ़लाने ने CSS की, मैं भी वो कर रहा हूँ, फ़लाने ने जुडिशरी की, मैं भी वो। ये इसको कहते हैं लकीर के फ़कीर। तो मैंने ये पहले ही आपको कहा कि लकीर के फ़कीर नहीं बनना है आपको बनना है जो आपको अल्लाह ने क्वालिटी दी है, जो अल्लाह ने आपको नवाजा, जिस रुतबे से नवाजा, जिस टैलेंट से नवाजा है, आप उसके ऊपर काम करें। उसके अलावा सक्सेस कंसेंट होता है आपके एस्पायरेशन का, कि आप किस बच्चे के साथ बैठते हो, किस बंदे के साथ आप बैठते हो। जब आप मायूस हो जाओ, तो मैं आप लोगों को बताऊं कैरियर को हासिल करने के लिए, जब आप मायूस हो जाओ तो एक अच्छे बंदे से बैठो, पढ़े लिखे के साथ बैठो, एक CSS क्वालिफाइड के बंदे से बैठो, एक जुडिशरी लॉ के बंदे के साथ बैठो। जब आप अच्छे बंदों के साथ सिटिंग करेंगे तो आपकी अप्रोच बनेगी। जब आपकी अप्रोच बनेगी तो आपको कैरियर को समझने के लिए आसानी हो जाएगी। सो लाइफ में यही चैलेंजेस हैं जो आपको समझने चाहिए। उसके अलावा एक शायर कहता है, जिसका एक मकसद है, वो कहता है कि मैं अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं, हमें गाइड करने वाले नहीं हैं, हमें नहीं मिलेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि बेटा, जब हुस्न आता है नज़ाकत आ ही जाती है, किसी के लाइन से हैं। जब आप निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, स्टेप लेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी। अल्लाह कहता है जब आप अच्छी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके पत्थर, आपकी हवा और मैं आप लोगों की मदद करने के लिए यानी कि पुरजोश होते हैं। तो अपने आप को अकेला नहीं समझें। आपके साथ अल्लाह है, आपके साथ टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं, वो आपको आगे ले सकते हैं। मगर एक और ऑप्शन आपको लेना पड़ता है। कहते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता भी है। तो एक है कि एक निदा, एक शायर है, उसकी लाइन्स में आपको
बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। वो कहती है कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता ही चुन। फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। यानी करियर को हासिल करने के लिए उम्मीद की भी ज़रूरत होती है, करियर को हासिल करने के लिए आपको कोशिश की भी ज़रूरत होती है, करियर को हासिल करने के लिए रास्ते भी चुनने पड़ते हैं, और उसके बाद मुकद्दर तलाश कर। आप स्ट्रगल करें, फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला विल सपोर्ट यू, और वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। इसके बाद हमें एक और चीज़ समझनी चाहिए। जैसे मैं एक परिंदे का एक मिसाल देता हूँ कि आप कहते होंगे कि सर बहुत शायरी बता रहा है। शायरी इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंस्पायरेशन है, एक मोटिवेशन है। एक शायर कहता है कि तालीम और तरबियत नहीं दी जाती परिंदों को, तालीम और तरबियत नहीं दी जाती परिंदों को, वो खुद ही हौसला रखते हैं बुलंदी को छूने को। यानी परिंदे को देखो आप, उनको कोई ट्रेनिंग तो नहीं मिलती है, उनको कोई स्कूलिंग तो नहीं मिलती है, उनको कोई समझाता तो नहीं है, वो खुद ही हौसला रखते हैं बुलंदी को छूने को। उनको पता होता है कि नाउ वी आर हियर और वी हैव टू फ्लाई। अल्लाह ने हमें पैदा किया है फ्लाई करने के लिए। सो यही मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। आप अपने आप से पूछें कि आपको क्या बनना है। तालीम के साथ आपकी तरबियत भी होनी चाहिए, ये भी आप लोगों का एक कैरियर है, इसकी वजह से आप आगे निकल सकते हैं। और इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल्स कोट करूंगा। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर शुएब अख्तर था, वो गरीब था, बहुत गरीब सा बंदा था, उसके पास शूज़ नहीं थे, उसके पास किराया नहीं था जब वो ट्रायल देने गया था। मगर आप शुएब अख्तर देखें, वो कितना सा स्टार है पाकिस्तान का। MS धोनी को आप ले लें, वो रेलवे पे टिकट काटता था, उसके बाद कोई साइकिल नहीं होती थी, वो किसी दोस्त की साइकिल लेके आगे जाता था। फिर आप MS धोनी देखें, सारी ICC की ट्रॉफ़ी उसने जीती है। एक और मिसाल आपको मैं देता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है। वो ये है कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ जेन कॉन का। वो एक यूक्रेन के कंट्री में अमेरिकन बंदा था, यूक्रेन में रहता था। वो एक गरीब बंदा था, उसकी फैमिली सारी गरीब थी, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा होता था कि वो जो सीज़न होती थी, गर्मी की सीज़न होती, वो तो निकाल देते थे, वो बर्दाश्त कर देते थे। जब विंटर की सीज़न आती थी तो वो इतने गरीब थे कि वो विंटर को सस्टेन नहीं कर पाते थे, उसको फेस नहीं करते। उन्होंने क्या किया, एक करीबी एक फार्म था, किटल फार्म या कोई भी फार्म था, वहाँ पे वो उनके साथ सो के, यानी कि साथ में बैठ के उस फार्म में वो अपने विंटर सीज़न यानी को फेस करता था चैलेंजेस को। हुआ क्या कि 1929 के अंदर यूक्रेन के अंदर एक हालात ख़राब हो गए। उसके अम्मी ने उसको अमेरिका के अंदर शिफ्ट कर दिया। वो अपनी माँ के साथ, अम्मी के साथ अमेरिका चला गया। वहाँ पे एक फ्लाई जो कहते हैं फूड स्ट्रीट की एक शॉप थी, वो इदारा था, वहाँ पे उसने जॉब की, वहाँ पे खाते थे पीते थे। फिर उसने एक जॉब ली जहाँ पे स्वीपर बना। जब स्वीपर बना तो उसके जहन में एक इमेज आया। मैंने आपको कहा कि इमेजेस देखें, ड्रीम्स देखें, वो आपको गाइड करेंगे। करें आप, रियलाइजेशन फार्मूला को अपनाएं। उसने एक ड्रीम लिया और रियलाइज़ किया कि अगर गरीब बंदे को आगे निकलना है तो एक ही सहारा है, वो एजुकेशन ही आपको आगे ले सकती है। फिर उसने क्या किया, एजुकेशन को, करियर को आगे लेके गया और फिर उसने कंप्यूटर सीखने की एक सलाहियत रखी। उसने कहा कि मैं कंप्यूटर यानी कि सीखूं। जब उसने कंप्यूटर सीखा तो उसके बाद उसने सोचा कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए। आईफोन जब उसके पास उसने काफ़ी मंथ के बाद उसने अपनी सैलरी से कलेक्ट करके सेविंग करके आईफोन लिया, तो उसने एक सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी एक एप्लीकेशन बनाऊं जिसकी वजह से बंदों के लिए सहूलत और सीक्रेट हो। उसने एक एप्लीकेशन बनाई जी फेसबुक के ज़रिए कॉल के लिए। जब व्हाट्सएप पे फेसबुक के एक एप्लीकेशन बनाए, जब उसने सेल की तो जब उसने फर्स्ट सिग्नेचर की थी तो आई एम टेलिंग यू कि वो 19 बिलियन की थी। अब वो 33 नंबर रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये आप एग्जांपल यानी कि भूल नहीं सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया स्टीफन है, और काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो दुनिया में आगे निकल सकते हैं बच्चे। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं
जो पहले कुछ नहीं होते, फिर आगे जब उनको पता देता है, चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो फिर उनको पता होता है कि हमारा करियर है। जैसे कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो बेटा कोई मसला नहीं है, जब आप फेल्यूर बनेंगे तो आप सक्सेस, मैं उम्मीद करूँगा कि आप फिर यानी आप सक्सेस को छू सकते हैं। कहावत है एक कि लाइफ इज़ नॉट अ सिंगल वे, लाइफ इज़ अ जिग वे। और वो जिग वे में ज़ाहिर बात है आप डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करते हैं। सक्सेस नीड्स योर डिवोशन, सक्सेस नीड्स योर सेक्रिफिकेशन, सक्सेस कैरियर नीड्स योर कमिटमेंट, डेडिकेशंस। ऐसा नहीं है कि आप दिल में सोचें तो आपकी वो कैरियर बन जाता है, नहीं, आपको ज़ाहिर बात है कमिटमेंट चाहिए। CSH करने के लिए कमिटमेंट चाहिए, डिवोशंस चाहिए, डिग्री हासिल करने के लिए आपको कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशंस चाहिए। तो जिसने अपने आप को समझ लिया वो ही आगे निकल सकता है। और आप ये नहीं समझें कि हम गरीब हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आप आगे नहीं बन सकते। आप आगे बन सकते हैं, आप कुछ ना कुछ बन सकते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि तीन चीज़ें ऐसे हैं जो किसी भी शर्त के मोहताज नहीं होती। वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी शर्त के मोहताज नहीं होते, कहाँ पे भी पैदा हो सकते हैं? नंबर 1, हुस्न। हुस्न कहाँ पे भी पैदा हो सकता है, गरीब में, अमीर में, मुस्लिम में, नॉन मुस्लिम में, मीन्स कोई शर्त नहीं। नंबर 2, आर्ट, हुनर कहाँ पे भी, स्किल कहाँ पे भी पैदा हो सकता है, गरीब में, अमीर में, रिच में, एलिट में, कोई शर्त नहीं है उसकी। और नंबर 3, आपकी वॉइस, आवाज़ जिसको बोलते हैं। आवाज़ किसी भी शर्त की मोहताज नहीं है, गरीब में भी पैदा हो सकती है, अमीर में भी पैदा हो सकती है, इंडिया में पैदा हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर पैदा हो सकती है, अमेरिका के अंदर पैदा हो सकती है। मीन्स देयर इज़ नो लिमिटेशन इन बाउंड्री। इसी तरीके से टैलेंट कहाँ पे भी पैदा हो सकता है, आपका स्किल कहाँ पे भी पैदा हो सकता है, मगर बात होती है अपने आप को समझने के लिए, बात होती है अपने आप को समझने। मैंने आपको कहा कि इब्न अरमल अपने आप को नहीं समझे। हाँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक मसला होता है, वो ये है कि अगर हमारे पास किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो हम उसको इब्न अरमल कहते हैं। मैं उन पेरेंट्स को कहता हूँ, समझाता हूँ जो अपने बच्चों को पढ़ना स्कूल में नहीं भेजते और बेगर के लिए उनको स्ट्रीट बेगर्स बना देते हैं, चौक बेगर्स बना देते हैं। मैं उनके पेरेंट्स को गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई इब्न अरमल है तो बराए मेहरबानी उसको बेगर नहीं बनाएं, उनको एजुकेशन दें। साहिल एक स्टूडेंट है बुगियो मेरा, वो उसके पास टांगे नहीं है, उसके पास हाथ बात नहीं है, यानी कि बाजू नहीं है, आज वो थाईलैंड में है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास विजन तो है, उसके पास थाट तो है, स्किल तो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे, वहाँ के जो बेगर्स हैं, जो उनके पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, प्रिजनर्स हैं, उनको भी एक जेल के अंदर लाइब्रेरी देते हैं। क्यों लाइब्रेरी देते हैं? उनको इन्वायरमेंट देते हैं। उनके पास यही सज़ा होती है कि ये सारे बुक्स पढ़ लें। इन्वायरमेंट में उनको रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि वो अपना विजन ब्रॉड करें और क्राइम से भागें और हालतों से भागें। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, पेरेंट्स अपने हाथों से अपने बच्चों को बेघर बना देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आँख नहीं होता है, कोई आँख नहीं होती है, एक हाथ नहीं होता, तो उनको एजुकेशन से महरूम कर देते हैं। तो मैं आई टेल यू को पेरेंट्स को एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अपने चिल्ड्रंस का कैरियर अच्छा देखना चाहते हैं, पुरजोश हैं अपने उन बच्चों के कैरियर के लिए, तो अपने बच्चों को तनकीद ना करें, उनको डांटें ना, उनको आप पजल ना करें, उनको आप गलत अल्फाज नहीं कहें। हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई बच्चा किसी का गिलास घर में तोड़ देता है तो हम उसको माशाल्लाह बहुत सज़ा देते हैं। और अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर, यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर कोई बच्चा किसी पेरेंट का लैपटॉप तोड़ता है तो फिर भी उनको कुछ नहीं कहते हैं। पेरेंट्स और न्यू देते हैं उनको कि भाई उसको यूज़ करें, इसलिए ताकि उनको पता चले कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है और ये क्या है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को
आप सॉफ्टली ट्रीट करें, अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उनको गाइड करें, उनको चॉइस पे छोड़ें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या आता है, आपके पास कौन सा टैलेंट है, और उसको वो आप उस राइट डायरेक्शंस में लें। स्टीफन हॉकिंग एक बड़ा एग्जांपल है, आप उसके भी ले लें, उसका एक बड़ा मिसाल है दुनिया के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हीरा होता है वो छुपता नहीं है, निकलता है, बाहर आता है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बैक पैचर्स होते हैं, तो उनके पास भी कभी कभी मैं टैलेंट देखता हूँ और पता चलता है कि ये एक बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, मगर वो बोलते नहीं हैं। उनको बोलने के लिए पॉलिश करना पड़ता है, टीचर की ज़रूरत होती है, टीचर ही वो है जो पॉलिश करता है। मैं आपको बताऊँ, जो स्टूडेंट्स करियर को हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स से यानी कि दुआएं लें। दुआएं वो चीज़ें जो आपको बताए तकदीर को मिटा देती हैं। एक मिसाल देता हूँ कि टीचर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका करियर 3 पर्सनालिटीज़ के हाथ में, एक टीचर, पेरेंट्स और सोसाइटी। टीचर की वैल्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिसाल कोट करना चाहता हूँ कि एक शिप थी, वो दरिया में चलती थी, उसके साथ एक लॉगेज फट्टा था, वो भी साथ में था। शिप के ऊपर 5-6 बंदे सवार थे। हुआ कि ये कि वो चले, सफ़र रवा दवा हुआ। अचानक ये हुआ कि जो लॉगेज था खाली, फट्टा जो था वो डूब रहा था नीचे। तो फट्टे ने अपनी शिप से पूछा कि आपके ऊपर कोई बंदा नहीं है, फिर भी आप यानी कि चल रहे हो, पानी में नहीं डूब रहे हो, मैं क्यों डूब रहा हूँ? तो उस शिप से आवाज़ आया, उसने कहा कि आप बेउस्ताद हैं, मेरे ऊपर जो चलाने वाला है वो उस्ताद है, तो इसलिए मैं पानी में नहीं डूब रही हूँ। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कि करियर को हासिल करने के लिए यू नीड द डायरेक्शन ऑफ द टीचर, यू नीड द पॉलिश ऑफ द टीचर। टीचर विल पॉलिश यू, टीचर विल गाइड यू, टीचर विल सजेस्ट यू वेयर यू हैव टू गो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के एफिलेशंस में आओ, अगर आपको सिंगर बनना है तो सिंगर के एफिलेशन में जाओ, अगर आपको लॉयर बनना है तो लॉयर के एफिलेशन की सिटिंग्स करें आप लोग। तो मेरे ख्याल में आप ये समझ गए होंगे कि दुनिया में करियर हासिल करना कितना टफ़ होता है। आसान है इसलिए जब आप इन्वायरमेंट लें, एस्पायरेशन लें, मोटिवेशन लें, उस्ताद का अदब करें, पेरेंट्स का अदब करें, सोसाइटीज़ में एक अच्छा सा ब्रांड बने। मैं कहता हूँ हमेशा कि आप ड्रेसेस पहनते हैं, अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, अच्छी परफ्यूम लगाते हैं, इसलिए कि हम कुछ बने और बंदे कहें कि हम कुछ हैं। मेरे डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि रियल परफ्यूम यू आर, वो आप पैसों पे ख़रीद करते हैं, पैसों पे ख़रीद करते हैं ड्रेसेस और परफ्यूम ख़रीद करते हैं कि हम अच्छे लगें, बंदे हमारी एडमायरेशन करें। मगर मैं आप लोगों को बताऊं कि रियल परफ्यूम यू आर। ऐसी परफ्यूम बने, ऐसी बात करें, ऐसे करियर पे बैठें कि आप बंदे पूछें, खुद पूछें कि ये कौन सी परफ्यूम है, ये कौन सा ब्रांड है। तो मेरे ख्याल में मेरा इशारा यही है कि अपने आप को पे समझें, अपने टैलेंट को समझें, अपने रियलाइजेशन करें कि मेरा करियर क्या है, मुझे क्या बनना है और अल्लाह ने मुझे किस करियर के लिए बनाया है। जब आप ये समझेंगे तो एक दिन आएगा और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। कुरान शरीफ में एक अल्फाज हैं, सूरत 30 है, वला तहनु ला तहजनु, यानी डू नॉट लॉस योर होप्स आर नॉट सेव। मैंने आपको कहा कि मायूस कभी ना हो, मायूस कुफ्र होती है। अपने आप को आगे समझें, अपने आप को कुछ समझें कि मैं कुछ बनूंगा। जब आप ये समझेंगे तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। उसके बाद इन दी एंड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने थिंकिंग पावर को आगे ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कमिटमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर होना चाहिए। उसके अलावा अपने आप खुद सोचें, जाके अपनी एक जगह लें जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मेरी क्रिएशन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसे सोचना है, कि आपको पता चले कि मैं कैसे सोचूं। गो एंड सिट अलोन, खामोशी अख्तियार करें।
अच्छी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको पता चले कि यहाँ पे मुझे क्रिएटिविटी आएगी। कुछ बंदे होते हैं कि रियल थिंग इज़ टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज़ दैट। कुछ बंदे कहते हैं कार में हम जब अकेला बैठते हैं तो हमें क्रिएटिविटी आती है। कुछ बंदे होते हैं कि रियल प्लेस इज़ टू थिंक रूम इज़ अ रियल प्लेस वेयर आई कैन एयर कंडीशन का रूम हो वहाँ पे। मैं कहता हूँ कि रियल प्लेस इज़ टू थिंक इज़ दैट इन योर सेल्फ। अपनी आप भी जाके सोचो, वही आपकी प्लेस है सोचने की, समझने की, अपने आप को समझने के लिए, अपने कैरियर को समझने के लिए। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि राइट डायरेक्शंस में आप अगर मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। कंसंट्रेशन से, दिलचस्पी से, एक इत्मीनान से आप मेहनत करेंगे तो आप आगे जाएंगे। एक और चीज़ मैं शेयर करता हूँ कि लाइफ में एक मरतबा मेरे ख्याल में ज़रूर सोचता है कि मैं खुदकशी करूँ। जो फेलियर होते हैं भाई क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो जब फेलियर हो जाते हैं कहते हैं कि हम खुदकशी करें। बेटा खुदकशी नहीं, ये हल नहीं है। जब आप खुदकशी के स्टेज पे पहुंच जाओ और फिर सक्सेसफुल बनो तो ये आप बड़ा एक लेवल है, ये एक बड़ा कैरियर, ये बड़ी एक हिम्मत है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि दुनिया के अंदर कैरियर को बनाना और अपने आप को समझना, अपने आप के टैलेंट को समझना, अपने कॉन्फिडेंस को समझना कैसे चाहिए। 3 पिलर्स बताए मैंने, टीचर, पेरेंट्स, ये सपोर्टर्स हैं आपके कैरियर्स को आगे निकल के लिए। और इसके अलावा परेशान होकर भी आप जब आगे निकलते हैं तो वो आपका रियल कैरियर होता है। आप कभी भी मायूस ना हो, कभी भी आप अपने आप को ऐसे ना समझें कि आप कम हैं किसी से, आपके अंदर भी टैलेंट है। एक इकबाल की एक शेर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एंड सेशन करूँगा। और अगर आपके पास फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन है, आंसर्स हैं तो आप मुझे थ्रू मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। और जिन्होंने भी, जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच कि वो लाइव मुझे देख रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट देयर कमेंट्स। उसके बाद अल्लामा इकबाल कहता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ईमान तेरा लूट गया रह जुल्म के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, यानी उस्ताद तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत के आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत के आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। यानी वही रास्ता जो मैंने आपको बताया था कि आपको चुनना है जो आपको सही रास्ते पे लेके चले, वो रहबर हासिल करना है, टीचर हासिल करना है जो आपको आगे लेके जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जब आप आगे निकलेंगे तो आपको हर चीज़ आपकी मदद करेंगे। जब हुस्न आता है नज़ाकत आ ही जाती है। दुनिया में 2 काम हर बंदे करते हैं, एक वो बंदे जो हार्डवर्किंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, मैं मानता हूँ वो पैसा कमा के बड़े आदमी बनते हैं, बड़े पैसे वाले बनते हैं। मगर कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो मेरा मिसाल है कि अगर आप इंसानियत पे काम करेंगे, शऊर के मुताबिक इंसानियत की मदद करेंगे, उसके करियर को आप लेके चलेंगे तो आप एक बड़े इंसान बनेंगे। यानी आपको बड़ा इंसान बनना है। जब चेयर पे आप बन जाएं, आपको कुर्सी मिल जाए तो वो आपका करियर नहीं है, वो आपका एक गोल है जो आप टारगेट अचीव करते हैं। रियल करियर आपका है आप बेस्ट इंसान बनना है। आपके पास पावर भी आ जाए, चेयर भी आ जाए, सारी प्रोफेशनल जो डिग्री हैं आपको मिल जाएं, मगर आप इंसान नहीं हैं, आपके पास करैक्टर नहीं है तो आप कुछ नहीं हैं। फिर अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, अपने ब्रदर्स की इज़्ज़त करें, अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें, अपनी माँ से दुआ लें। और इसके अलावा आपको मैं ये बताऊं, जैसे मैंने आपको कोटेशन दिया था पहले कि सक्सेस कैन नॉट बी मेजर्ड इन इंचेस एंड पाउंड्स और पॉवर्टी और एल्सवेयर। सक्सेस कैन बी मेजर्ड इन द साइज ऑफ थिंकिंग। जैसा आप सोचेंगे वो सा आपको बनना है। पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिव इंशाल्लाह मिलेगी। मगर जब ऑफिसर बन जाएं, कैरियर कौन जब से सबसे अच्छा मिल जाए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छे स्टूडेंट बनना है। उस्ताद जो जिन्होंने आपको बनाया है उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको हमेशा याद रखना है। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा सेशन सुना। थैंक यू फॉर इन्विटेशन। कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकें। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।